Hi friends, so we meet again for today's analysis. Uh, so I think we had a good relief rally for the markets today as well. It's now three consecutive days in green. लगातार 3 दिन हम green में बंद हुए हैं. And from the lows of around 23,068 kind of a levels, we have on the spot we closed around 23,350, although the average closing came around 23,300. So I think we have rallied around 250-300 points, and on the Bank Nifty we have rallied around 1,500 points or so. All the other indices of the broader index also today again they closed in green. So we have three consecutive days of green in all the major indexes. ये जो ग्रीन की तेजी आई है, जो ग्रीन वेव आई है, दिस हैज बीन इंपोर्टेड. मोस्टली इट हैज कम फ्रॉम द यूएस मार्केट्स. कल यूएस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेशन हुआ. अराउंड 1.5 to 2% ऑल द इंडेक्सेस वर अप. द रीजन वाज दैट द इन्फ्लेशन प्रिंट केम वेरी बिनाइन. जो उनका ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं था. दैट हैज केम एज पर एक्सपेक्टेशंस. बट द कोर इन्फ्लेशन विच वाज अराउंड expected around 0.4% rise, that has come only 0.3% rise. So this was rejoiced by the market yesterday, and we saw a huge rally in the US markets. Apart from that, the dollar cooled off a lot. We were hovering around 110 kind of levels. Today we came to 109. In fact, briefly intraday we touched around 108.9 as well. Even if you see the bond yields, which came around 4.77 or 4.8, now yesterday they were around 4.66. तो वहां पे हमें कूल ऑफ नजर आया बॉन्ड यील्ड्स के अंदर, डॉलर इंडेक्स के अंदर. बट रुपी में वो उतना ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ. रुपी टुडे आल्सो क्लोज 12 पैसा लोअर, एंड दैट वाज नॉट समथिंग गुड. वी आल्सो वांटेड द रुपी टू बिकम स्ट्रांग, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया. बस ओवरऑल it was rejoiced by all the emerging markets. और आज in fact all the emerging markets closed in green, so it was a good day for the overall stock markets. Now if we come to other news, जो हमने कल बात करी थी, इजराइल और हमास के बीच में एक समझौता होने के चांसेस हैं. they have gone much more closer now they almost started releasing the terrorists and the hostages on both the sides. So Israel is releasing the terrorists and Hamas is releasing the hostages. Although उनका जो इजराइल का जो एक ऑफिशियल चैनल है, उन्होंने एक बहुत ही सतर्क रिमार्क दिया कि हम अभी क्लोज है पर हमने पूरा क्लोज नहीं किया है. वी वांट सम मोर थिंग्स टू हैपन, बट ओवरऑल इट्स काइंड ऑफ अ सीज फायर ओनली. युद्ध वहाँ पे रुक गया है. देयर इज नो फाइटिंग हैपनिंग, एंड द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंड टेररिस्ट आर हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स. So this was again one very good news from Israel and Hamas point of view. I also discussed yesterday that the Russian President Mr. Putin will be meeting to Mr. Trump as soon as he sworn in on 20 January. और इसके पूरे चांसेस हैं कि वहाँ से भी हमें रिलीफ मिलेगा. अब उसके बावजूद भी हमें क्रूड पे कल उतना इफेक्ट नहीं मिला. इनफैक्ट क्रूड वॉज ट्रेडिंग above $82, which is now come very close to upper band of RBI comfort level, and that is slightly negative for Indian stock markets as well, because हम क्रूड के तो ऊपर नहीं दिखना चाहते. दैट इज बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑन रशिया जो उन्होंने डाले. बट आई थिंक दोज आर ऑल्सो टेम्पररी. वंस ट्रम्प टेक्स चेयर, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट sanctions to be taken off, but on the ground level we will not see these sanctions being implied strictly. तो वो एक रिलीफ हमें क्रूड के अंदर मिलेगा, और मेरे ख्याल से क्रूड वहाँ से एक सेल ऑफ वहाँ पे आना चाहिए. That will also become a good factor for the Indian stock markets. One more news came yesterday. Hindenburg, जिसने अदानी ग्रुप्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी रिपोर्ट्स निकाली थी, and they were short on अदानी ग्रुप्स, that has now closed down. That company itself has closed down. That is why we saw some rally today in the stocks of Adani's, and it has been a bad end for them. The company was only 7 years old. They started in 2018, and it was only having 11 employees. But the track record has been pretty good for Hindenburg. I think 90% of the companies which they have given as short calls, they were profitable, and the companies were, whatever they told actually came out to be true, and the company saw huge short selling in the stocks. और जो उनके ओनर्स थे उन कंपनीज के, उनके बहुत सारे लॉ सूट भी फाइल हुए. इनफैक्ट 100 of them. Now, I think with Trump coming in, and I think it was more inclined towards Biden's strategies or Biden's, diplomacy.
ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद दे हैव अंडरस्टूड दैट दे विल नॉट हैव अ कंफर्ट गोइंग फॉरवर्ड्स। उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे लॉ सूट हो सकते हैं, कुछ कंपनीज ने उनके अगेंस्ट लॉ सूट वैसे भी फाइल किए हैं, and that is why I think the company has decided to shut down. So this was again one good news from our end. डॉलर इंडेक्स क्योंकि कूल ऑफ हुआ तो हमने मेटल्स में रैली देखी। मेटल्स में कल भी रैली हुई थी, कल भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ था डॉलर इंडेक्स, और आज भी डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ। वी हैव सीन अनदर वेव ऑफ रैली इन द मेटल शेयर्स। आज के जो स्टार था वो निफ्टी बैंक था, और निफ्टी बैंक इसलिए भी था बिकॉज RBI हैज कम विद द पॉलिसी ऑफ VRR। व्हाट इज VRR? VR इज वेरिएबल रेपो रेट। व्हाट इज वेरिएबल रेपो रेट? एक तो होता है रेपो रेट, जो हम RBI की पॉलिसी आती है एवरी 2 मंथ्स, जहां पे हम डिक्लेयर करते हैं व्हाट इज द रेपो रेट। एक होता है वेरिएबल रेपो रेट, जहां पे 50,000 करोड़ की आप पैसे ले सकते हैं फ्रॉम RBI, नॉट एट द रेपो रेट विच इज अ फिक्स्ड रेपो रेट, बट इवन बिलो दैट। सो दिस इज टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। और क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में दोबारा जनवरी में कम हो गई थी, इट केम ऑन टू अ नेगेटिव साइड, इसलिए RBI ने ये स्टेप उठाया। इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज फॉर द बैंक्स, इनफैक्ट ऑल द रेट सेंसिटिव स्टॉक, बिकॉज लिक्विडिटी सिस्टम में आएगी। सो रियल एस्टेट स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, इनको बहुत बड़ा एडवांटेज है। हमने देखा भी आज की बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छा रैली की है। वी सॉ अराउंड 500 पॉइंट्स रैली इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सीआरआर कट भी पहले हो चुका है, विच इज अगेन अ बिग पॉजिटिव फॉर द बैंक्स। और बैंकों के रिजल्ट्स Q2 में अच्छे आए थे और Q3 में अच्छे आने के चांसेस हैं। अगेन विल टॉक अबाउट रिजल्ट्स सम टाइम लेटर जस्ट नाउ। तो ये एक अलग अच्छा न्यूज था RBI से, जिसकी वजह से बैंक स्टॉक के अंदर एक रैली आया। तो दिस वाज सम गुड न्यूज व्हिच केम फ्रॉम वर्ल्ड एंड व्हिच हैपेंड टुडे इन द इंडियन मार्केट्स एज वेल। अब रिजल्ट्स की हम बात करें, आज पंजाब एंड सिंध बैंक का रिजल्ट आया कल, व्हिच वाज वेरी गुड रिजल्ट। द प्रॉफिट्स वर इंक्रीज अराउंड 20%। डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा उतना अच्छा नहीं बढ़ा था, 8% के आसपास। निम्स भी उनके अच्छे थे, एंड इवन द एसेट क्वालिटी वाज आल्सो गुड। सो बैंकों का जो आगाज हुआ है, उनके आई वुड अगेन रिपीट, क्वार्टरली अपडेट्स भी खराब नहीं थे, एंड दैट इज व्हाट अगेन आई एम सेइंग कि बैंकों को बहुत पनिश किया गया है, एंड यू विल सी अ ह्यूज स्प्रिंग राउंड ऑफ रैली इन बैंक निफ्टी। दिस कैन रियली हैपन, एंड वी कैन टेक द बैंक निफ्टी to new all-time high levels probably in February or something, if at all the Trump trade spreads out very well. So this is about the banking sector. Today we have a heavy result day. We have results from Reliance, we have results from Axis Bank and Havells. So Havells is a company which will set the tone for the consumer circuit segment. We have Axis Bank, which is a big corporate bank, so it will set the path for the banking stocks, and Reliance itself is in a big stock. So ये तीन वेरिएबल्स आपके रहेंगे आज। और इन्फोसिस का रिजल्ट है, which is again considered to be a big bellwether for the IT sector, because वो गाइडेंस देता है। So we will see how Infosys give the guidance. मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उन्होंने गाइडेंस Q2 में दिया था उससे थोड़ा सा वो इंक्रीज करेंगे अपर बैंड को, तो मार्केट इज लुकिंग फॉर दैट एज वेल। So overall today is a very result heavy day, and all the 4 results will set the path of how the sector will look like. जैसे कल हुआ HDFC लाइफ का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उनका AUM अच्छा था, उनका जो प्रीमियम ग्रोथ था वो बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से SBI लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, आपको सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर रैली नजर आई। सिमिलर थिंग वी कैन सी टुमारो एज वेल इफ एट ऑल द रिजल्ट्स फ्रॉम दीज 4 कंपनीज आर गुड। सो वील वॉच फॉर दोज थिंग्स। यूएस मार्केट्स के अंदर जो बैंकों के रिजल्ट आए कल, 4 बैंक्स के, दे वर वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। हमने कल भी बात करी थी, रिजल्ट उनके अच्छे आएंगे बिकॉज ऑफ ट्रेजरी गेन्स। सो गोल्डमैन सैक्स हैज गिवन द हाईएस्ट टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन एवर ऑफ हिस्ट्री। इवन सिटी बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए, दे बीट द एस्टिमेट्स। गोल्डमैन सैक्स ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बैंक ऑफ अमेरिका ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। सो बैंक ऑफ अमेरिका रिजल्ट आज है, एंड मॉर्गन स्टैनली का आज है। बाकी 4 बैंकों के जिनके रिजल्ट आए हैं, विच इंक्लूड्स योर गोल्डमैन सैक्स, योर सिटी ग्रुप, वेफायर ग्रुप, ये सब रिजल्ट बहुत शानदार रहे हैं, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बैंकों के रिजल्ट वहाँ पे अमेरिका में अच्छे ही आएंगे। सो दैट इज वन अगेन गुड न्यूज फ्रॉम यूएस मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया के अंदर हमारे रिजल्ट्स चल रहे हैं, वो विल सी हाउ इट इज पैंस आउट। अभी तक रिजल्ट्स हमारे मिक्स्ड आ रहे हैं, नॉट गुड नॉट बैड, बट विल सी दैट IT सेक्टर्स के रिजल्ट उतने खराब नहीं आए हैं। द कमेंट्री इज ऑल्सो कमिंग गुड। जो छोटे बैंक ने रिजल्ट दिए हैं अभी तक रिजल्ट अच्छे दिए हैं, दैट इज अगेन आई वुड से गुड रिजल्ट्स। इवन जो मार्केट कैप रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं लाइक एंजल वन एंड ऑल, द रिजल्ट्स वर गुड। ठीक है, मार्केट ने उनको पनिश किया बिकॉज एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई,
but I think the results were not results were pretty good in that way. So this was all the set of results which happened yesterday and which are going to happen today. Now the important thing is what to do, how are we placed, and what should we do for next 2 3 days. So देखिए, I think the worst is over. We have seen a lows of 23068. वो अब हम बहुत मुश्किल से तोड़ेंगे until unless we get a very bad news. बैंक निफ्टी के अंदर तो मैं क्या पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ कि यू स्टे लॉन्ग, यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड जो हमारा मंडे का लो था 47068, around those levels you should have a stop loss around that. Bank Nifty is the index which will lead among all the indexes. Although ये रिजल्ट आज का जो रिजल्ट है एक्सिस बैंक का वो और तय कर देगा इस बात को, बट आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स आर लुकिंग गुड एंड दे शुड लीड फ्रॉम हियर. जो निफ्टी है, निफ्टी इज गेटिंग टाइटन अप बिकॉज ऑफ निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, और थोड़ा सा अब एक थकावट नजर आ रही है निफ्टी आईटी के अंदर भी. सो कंसिडरिंग ऑल दिस, निफ्टी थोड़ा सा भी सोचता है कंस्ट्रेंट रहे, बट बैंकिंग स्टॉक्स आर लुकिंग गुड एंड बैंक निफ्टी इज ऑल्सो लुकिंग गुड. बट व्हाट विल हैपन नाउ टुमारो एंड डे आफ्टर. कल मार्केट कोशिश करेगा अपनी पोजिशनिंग करने को फॉर द ट्रम्प ट्रेड. Even the US markets will try to do some positioning in the markets from today and tomorrow. Tomorrow means on Monday, क्योंकि उनकी swearing in होगी मंडे को, और मंडे को जैसे ही वो चेयर पे बैठते हैं, what the news is coming is that they will be announcing some 15-16 announcements which will happen on the same day. So agenda is set, his announcements are ready and probably those will come on Monday itself. So मंडे को वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है, कल भी ज़्यादा रह सकती है. ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अगर डिप मिला है तो बाय करना है, वेदर इट इज निफ्टी और निफ्टी बैंक, वी शुड बाय इट. हमारा एक ही फियरसम फैक्टर है डॉलर इंडेक्स. अगर सैंक्शंस बहुत हाई लगते हैं तो डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अगर सैंक्शंस कम लगते हैं तो डॉलर कूल ऑफ होगा. देयर विल बी सम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स एज वेल, जहाँ पे टैक्स कट्स वगैरह की बात होगी, कॉर्पोरेट टैक्स कट्स की, जहाँ से यूएस मार्केट तेज चलेगा. बट वो सब कुछ प्राइस में ऑलरेडी है. दैट इज द डॉलर इंडेक्स हैज inched up to 110 levels. So there are many things which are already in the price. कल की वोलेटिलिटी में अगर मार्केट इंक्रीज कर रहा है, डोंट चेज इट. अगर डिप मिल रहा है तो बाय इट, बट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट हेजिंग, व्हाटएवर स्ट्रेटेजी यू फॉलो, आप वहां से बाय करिए. रिस्क इज वेरी लेस, खोने को कम है, यहां से गेन होने को ज्यादा है. Don't take new positions tomorrow and day after tomorrow. Wait for the announcements to happen. Let the Trump trade play out. Let him announce on the results or whatever announcements he has to make. Sorry, and let us see how the dollar index, rupee, how China markets are reacting, how the Asian markets are reacting. What are the counter sanctions? How exactly the world is taking up those things. किस कंट्री को कितना लॉस है, किस कंट्री को कितना फायदा होगा. Let us try to measure those things. Let us try to really see the impact of those Trump trades. So I'll not advocate for any new position tomorrow and day after if the market is increasing. अगर आपको एक substantial dip कल मिलता है तो take some positions. There is no doubt on that. अगर आपको मार्केट में एक substantial rise कल मिलता है, you can think of booking some partial profits as well. हमने जो हमेशा आपको लॉन्ग रहने को कहा है, अगर आपको कल वहाँ कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं, you can try to reduce your positions tomorrow. That is also a good strategy. I don't think कि मार्केट कहीं भाग के जा रहा है. We will get the we can again get a chance on Monday. Markets will remain volatile. वैसे भी आज रिजल्ट्स हैवी डे है, आज बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं. लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टुमारो. बट मेरे ख्याल से मार्केट पे ट्रम्प ट्रेड ही हैवी रहेगा कल और मंडे स्पेशली. तो लेट अस सिंक इन दिस बिगर इवेंट, दैट इज मोर एसेंशियल. बट आपको अगर सब्सटेंशियल डिप मिलता है तो बाय. But if you're getting on a rally, then try to sell your positions and become lighter. You can take positions again on Monday or Tuesday जब हमको clarity और मिल जाती है. This is the way you should approach. This is what I would approach the market for tomorrow. So this was all for today's analysis. We discussed what happened yesterday, how the markets have panned out today, what is looking for tomorrow and day after, and I think the bigger levels we will only discuss after 20th Jan. Once Trump takes in and he announces all his points,
देन विल टेक अ कॉल कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जा रहा है. तब तक थोड़े रिजल्ट्स और भी आ जाएंगे. एटलीस्ट हर सेक्टर का एक रिजल्ट आ चुका होगा. एंड विल ट्राई टू फील अ ग्लिम्स ऑफ हाउ द मार्केट्स आर लुकिंग. सो वो कमेंट्री जो होगी मंडे की और ट्यूसडे की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन टर्म्स ऑफ लेवल्स. सो फॉर टुडे दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हैव अ नाइस डे.